Good morning, students of the BSc third year classes. I will going to the discuss about to the new topic which are related to the second paper of the BSc third year, which is that to the biotechnology. I was discuss 5 to 6 videos for that to the biotechnology and discuss all about things which are happening and going on, just like to the what is the discoveries which possible that to the genetic engineering process, what about to the genetic engineering, what is the biotechnology and the enzymology for that to the genetic engineering, the application of to the biotechnology in the different fields. So what is the vector, host, linkers, and to the mode of to the cleaving, mode of the cutoff to the DNA strand or the genes for to the particular sites, so that to the target site are the restriction endonuclease enzyme as well. This is a very important vector and to the foreign DNA. So that to the these are all the aspect, all the scenarios which are back to back in the lecture and we was discussed. So today's topic is especially the application of the biotechnology, but is a concern especially for that to the pharmaceuticals field. In the pharmaceuticals field, to the form to the therapeutic drugs, which means that to the one of drugs is important in the detection of to the genetical disease or the so that genetical engineered human insulin. We are going to the discuss about genetically engineered human insulin. तो आज के टॉपिक में हम बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ों को देखेंगे, जो उसके एक वन ऑफ द फील्ड को देखेंगे जो फार्मास्यूटिकल जो हमारा ब्रांच है या फील्ड है, उसके अंतर्गत थेरेपेटिक ड्रग्स को देखेंगे, जिसमें हम इंसुलिन खासकर बात करेंगे कि इंसुलिन जेनेटिकल इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कैसे, हाउ इज द प्रोसेस इज गोइंग ऑन टू मेड टू द प्रॉपर इंसुलिन for to the treatment of to the diabetes mellitus, so that to the first of all you are going now to the firstly to the first time is the insulin which where are to the form to the genetically engineered human insulin. Firstly genetically, तो पहला जो इंसुलिन जो बनाया गया था ह्यूमनिलिन के नाम से, वो इकोलाई बैक्टीरिया में द फर्स्ट ह्यूमन इंसुलिन वाज ऑब्टेन्ड बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड इकोलाई इन द 1983 बाय अमेरिकन कंपनी इली लिली. इट वाज नेम्ड ह्यूमिलिन. तो हम आपको पूरी तरीके से डिटेल में चर्चा करते हैं इस पर कि to the detection and the cure and the diagnosis for that to the diabetes mellitus, for the cure and detection and to the diagnosis of to the diabetes mellitus, that is the firstly by the scientist which made to the insulin, human insulin as a name as the Humulin by the American company is the Eli and Lilly. Sorry for that too. Eli and Lilly is the American company. Eli and Lilly is the American company which made to the
human insulin is named as the Humulin in the 1983. In the 1983 as named as Humulin. Firstly this company is made to the human insulin in 1983. अब हम पूरी डिटेल में जाते हैं और बात करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टू द diabetes mellitus, that is the insulin which are formed by to the genetical engineering method, recombinant DNA technology by the scientists through the E. coli. We are just I was mentioned that to the in the scenario of when the time up to the discuss about to the genetical engineering process. The genetical engineering process is possible that to the when the bacteria which are major role play in the genetic engineering, because the by the scientists the as a product as a तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे बैक्टीरिया को यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है, यूज किया है टू द abundant amount of to the E. coli bacteria, Escherichia coli bacteria we use into the genetical engineering process, and that's to the form to the Humulin as insulin as a Humulin named in the 1983 through the cure and diagnosis after diabetes mellitus. What is the diabetes mellitus and diabetes insipidus, that is the differences. तो हम ये समझते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है जो फील्ड में जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के माध्यम से यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के द्वारा बनाया गया, तो उसके किस किस डिजीज़ के अंतर्गत डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस दो रोग होते हैं. तो डायबिटीज़ मेलिटस जो कि पैंक्रियाज में पाया जाने वाला जो हार्मोन्स होता है वो रिलीज़ होता है, तो यहाँ पे बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी होती है वहाँ पे ग्लूकोज को मेंटेन करती है. अब थोड़ा सा यहाँ पे इन डिटेल वी आर गोइंग इनटू द इन डिटेल व्हेन द डिस्कस अबाउट टू द वेयर आर द प्लेस दैट इज द secreted to the hormones is the insulin, that is the place. Pancreas have to the group of the cells A, B and D cells are the alpha, beta and gamma cells which are constituted together, and to the beta cells up to the isolates of the Langerhans which are found into the pancreas, that is secreted to the hormone glucagon and insulin, that is related to the glucose metabolism. When the time up to the glucose level which are decreases or increases in the blood, so there are these two hormones which goes to for the glucose metabolism, for the maintenance of the glucose in the blood, that is secreted at this time. So when the glucose blood level increases, blood glucose level increases, that to the beta cells of the pancreas is secreted to the hormone of the insulin, and that's hormones through the blood which goes to the liver and enhances to the liver cells, for that to the restore to the excess amount of the glucose, and after that to the liver cells which are going into the metabolism to process up to the glycogenesis, which means that to the glycogenesis, the process in which to the glucose is converted into the glycogen through the insulin when the excess amount of, but when the blood glucose level is decreases or the going into the below the level, so that to the one of the hormones is the glucagon is working on, when the
once again to the stimulated to the liver cell, and that's to the liver cell is stored to the in the form of the glycogen once again into the glucose and released to the blood in the blood, so that to the maintain to the blood glucose level. So this is the timing, this is the production of to the hormone during to the activity, so that to the insulin is essential for that to the maintenance of the blood glucose level, so that this is the mandatory. So if the glucose level which are not maintained and that is going to through the urine, pass out to the through urine or to the do not reabsorb by to the nephrons of the kidney, so that is the which pass out through the disease which going on to the diabetes mellitus. If the not appropriate amount of the production of the insulin, तो कहने का मतलब था कि इंसुलिन का जब पूरी तरीके से प्रोडक्शन बंद हो जाए या प्रोडक्शन नहीं होता तो ब्लड ग्लूकोज मेंटेन नहीं होता और वो किडनी के माध्यम से नेफ्रॉन्स उसको रीअब्जॉर्ब नहीं करती और पास आउट होने लगता है यूरिन के माध्यम से, तो उसको डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं। और डायबिटीज़ मेलिटस का मतलब होता है स्वीट, तो वो ग्लूकोज के एक्सेस होने पे वहाँ से निकलता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन बीटा सेल्स से निकलता है, आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस, और वो जब नहीं निकलता तो उसको क्योर और डायग्नोस करने के लिए वैज्ञानिकों ने वो आर्टिफिशियली इन विट्रो कंडीशन में इस मेथड जेनेटिकल रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेथड के माध्यम से क्या रिफर्ड किया कि इंसुलिन बनाया जाए। और सबसे फर्स्टली टाइम में इली लिली जो अमेरिकन कंपनी है वो ह्यूमलिन के नाम से 1983 में उन्होंने सबसे पहले बनाया। तो उसमें उन्होंने किस प्रकार से जेनेटिकल इंजीनियरिंग को जो है प्रोसेस के माध्यम से बनाया, तो देखते हैं उसमें ए चेन और बी चेन के माध्यम से जो प्लाज्मिड ऑफ द ई कोलाई है उसको लिया है। और जैसा हमने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रोसेस में ये बताया है कि जब भी रिकम्बिनेंट बनाते हैं देयर आर द टू सेगमेंट्स ऑफ द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डीएनए विच गोज टू द इन द कॉम्बिनेशन विच गोज टू द कंबाइंड टुगेदर कंबाइंड इटसेल्फ दैट इज फॉर्म टू द रिकम्बिनेंट डीएनए molecules, and these recombinant molecules which want to that about to the which kinds of the field which introduces into the host, and that's to the host which replicated form to the its clone. So these are helpful into the formation of to the this kinds of the medicines. तो यहाँ पे इस प्रकार के जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन को बनाने में सफलता प्राप्त हुई, सक्सीडेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ। तो अब यहाँ पे हम दो बात करते हैं, जेनेटिकल इंजीनियरिंग में कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ थियरियाँ थी और कुछ टूल्स होते हैं। तो टूल्स के माध्यम से एंजाइम होना चाहिए। एंजाइम जानते हैं आप, restriction endonuclease enzyme is the enzyme that to the cut to the DNA strand where are the palindromic sequence is obtained, and to the into the two mannered is the staggered manner or the blunt end or the staggered end। तो दो तरीके से उसको काट देता है और वहाँ पे फिर से फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को रीयूनाइट करके उसको रिकम्बिनेंट बना के किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। होस्ट बैक्टीरिया होता है जैसा मैंने पहले भी बताया। तो अब हम यहाँ पे इंसुलिन को बनाने के लिए दो चीज़ों को लेंगे, अब यहाँ से बात करेंगे। तो हम सबसे पहले करते हैं कि आपको याद होगा हमने प्रोसीजर में आपको बताया था कि पहले किसी भी टिश्यू से जैसे प्लांट हो या एनिमल्स हुआ, हम खासकर यहाँ पे ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्टली विच गोज टू, अब हम यहाँ से एक ह्यूमन ये सेल है और ह्यूमन सेल से क्या प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ह्यूमन सेल से ह्यूमन क्रोमोसोम या जीन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है, ह्यूमन, ये है ये ह्यूमन क्रोमोसोम है, ह्यूमन क्रोमोसोम है। और ये ह्यूमन क्रोमोसोम जो होता है यहाँ से
हम एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे। लाइसोजाइम एंजाइम या लाइजिंग एंजाइम का यूज करते हैं और डिसॉल्व करके उसको वहाँ से निकालते हैं और जो महत्वपूर्ण स्ट्रैंड होते हैं उसको वहाँ से कट आउट करते हैं। तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके हम जो है क्रोमोसोम को निकाल लेंगे। मान लीजिए हमने इस प्रकार से एक डीएनए स्ट्रैंड को निकालने का प्रयास किया, डीएनए स्ट्रैंड को निकाला, और क्या करना है दूसरी तरफ, अब ये क्या हो गया, ये फॉरेन डीएनए हो गया, फॉरेन ये डीएनए या हो गया। अब दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, एक बैक्टीरियल सेल, चूंकि जेनेटिकल इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया को ही लेके ये ह्यूमिलिन को बनाया गया है, तो एस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया और उसका प्लाज्मिड ये है। तो क्या करेंगे हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर उसको क्या करेंगे वहाँ से लेंगे और इस वेक्टर को निकाल के यहाँ पे प्लाज्मिड को हमने ले लिया। तो प्लाज्मिड के विषय में हम बताते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है और इसमें रिप्लिकेशन करने की क्षमता होती है, लेकिन ये जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसके अलावा पाया जाता है। इसमें उससे जुड़ी जो मेटाबॉलिक और जो हेरिडिटरी फंक्शनिंग होती है उससे वो बिलोंग नहीं होता, बल्कि इसमें रेजिस्टेंस पाया जाता है, फर्टिलिटी रेजिस्टेंस होता है, कोलिसिनोजेन होता है जो कोलिसिन का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से तो एज अ वेक्टर इसको लेते हैं। तो देखिए दो, ये बैक्टीरिया आप ह्यूमन क्रोमोसोम है, ये बैक्टीरिया से प्लाज्मिड है उसका, और इसको हम लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, पहले हम दिखा लेते हैं, ऐसे दिखा लेते हैं आपको, अलग अलग तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे। तो ये क्रोमोसोम हो गया, मान लीजिए समझ लीजिए ह्यूमन क्रोमोसोम हो गया, उसको हमने निकाल लिया है, एक्सट्रैक्ट किया, लाइसोजाइम एंजाइम का यूज किया और दोनों तरीके से हमने इसको कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टू द बैक्टीरिया व्हेन द बैक्टीरिया which check the viral genome, the bacteriophage which are attacked। जबकि बैक्टीरियोफेज उस पर अटैक करता है तो उसको रोकने के लिए बैक्टीरिया जो है एक एंजाइम को रिलीज करता है जो कि उसके स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को काटता है। तो उसके आधार पे डब्ल्यू आर्बर ने पहली बार खोज की थी इसकी। तो इस एंजाइम का ये गुण है कि ये स्पेसिफिक साइट से या किसी टारगेट साइट से इसको क्लीव करेगा। तो दोनों, एक फॉरेन डीएनए, एक वेक्टर जो वेक्टर क्लोनिंग जो वेक्टर है, इसको यहाँ से स्पेसिफिक टारगेट साइट या स्पेसिफिक साइट या फिर जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कटेगा। तो वहाँ पे जैसे कि 6 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होता है, वहाँ से ये काटेगा, क्योंकि इसके लिए मैंडेटरी है कि यहाँ पे होना चाहिए। तो हम देखें इस प्रकार से इसको स्टैगर्ड कट काटते हैं इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से हम इसको स्टैगर्ड कट बोलते हैं। जब कभी नाइट्रोजनस बेस को, एक नाइट्रोजनस बेस को जो डबल डुप्लेक्स होता है डीएनए का, एक नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस पे काटते हैं तो उसको स्टैगर्ड कट बोलते हैं। और जबकि दोनों स्ट्रैंड के सेम नाइट्रोजनस बेस पे कट किया जाता है तो उसको जो है ब्लंट कट बोलते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए स्टैगर्ड कट के माध्यम से यहाँ पे हमने इसको ह्यूमन क्रोमोसोम को जो है यहाँ पे लिया, और उसी ठीक प्रकार जो प्लाज्मिड है उसको भी हम जो है इस प्रकार से कट करेंगे जिससे कि ये आके अटैच हो जाए बेहतर तरीके से। अटैचमेंट की जो प्रक्रिया है वो बेहतर यहाँ पे हो, उस साइड पे हो, टारगेट साइड पे हो। तो देखिए यहाँ पर जो कट होगा वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो देखिए ये हम बना देते हैं इस प्रकार से। अब क्या यहाँ से ये इस प्रकार से, तो देखिए अब ये कट होगा तो ये जाके यहाँ से ये इस प्रकार से होगा, तो ये जाके यहाँ पे ये यहाँ पे जुड़ेगा इस तरीके से। अब ये मैंने जो बनाया है ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, और इस रिस्ट्रिक्शन साइट
के तरीके से ऐसे स्टैगर्ड कट के माध्यम से ही जाके जुड़ेंगे, जहाँ पे इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, ये दोनों यहाँ पे रीयूनाइट होंगे। अब इसके लिए एक एंजाइम की और भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से हमने क्या कर लिया, इस क्रोमोसोम से जीन इंसुलिन जीन को आइसोलेट किया और यहाँ से ये प्लाज्मिड वेक्टर को वहाँ पे पैलिंड्रोम सीक्वेंस में कट कर दिया, कट ओपन। अब क्या करेंगे, इस दोनों को वी आर गोइंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ligase enzyme. What is the ligase? What about to the ligase? Ligase is the enzyme which are working during to the two different types of the segment of to the DNAs which are come close together and form to the recombinant, so that this is the very essential. तो यहाँ पे ये essential ये है कि जबकि दो different segment जो है DNA के आपस में जुड़ेंगे तो इस एंजाइम की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। तो अब देखिए किस प्रकार से होगा, हम दूसरे तरीके से बनाते हैं इसको। ये देखिए रिकम्बिनेंट बनने का प्रयत्न, तो ये रिकम्बिनेंट बनेगा और रिकम्बिनेंट के हिसाब से हम यहाँ पे बना रहे हैं। इसको हम दर्शाते हैं कैसे, ये देखिए अब ये जाके यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। ध्यान दीजिए, हम दूसरे ऐसे बनाते हैं। देखें इस तरीके से हमने यहाँ पे कलर चाक की मदद से आपको यहाँ पे हमने स्टैगर्ड जो कट है उसके माध्यम से बनने वाला देखिए हमने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे हमने बताया था लिंकर्स की। लिंकर्स क्या होते हैं, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो आर्टिफिशियली तरीके से कुछ नाइट्रोजनस बेसिस को मिला के बनाए जाते हैं और उसका इस्तेमाल हम इस स्टैगर्ड कट के बाद जो है जब रिजॉइनिंग होती है तब के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ये रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ है, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम के माध्यम से रिकम्बिनेंट, तो ये क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स है, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स है। अब ये क्या हो गया, ये कैसा है, जहाँ पे इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन जो जीन है और ये वेक्टर जीन है। वेक्टर का ये गुण होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए विच कैरिंग टू द कैरिंग कैपेसिटी फॉर दैट टू द इंजर्शन ऑफ टू द इंजर्शन ऑफ टू द फॉरेन डीएनए इन द होस्ट। तो ये सब गुण होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे हम, ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब इसको होस्ट में, किसी होस्ट को लेते हैं, तो होस्ट होता है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंतर्गत इसको क्या कर देंगे, हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब बैक्टीरिया का खुद का अपना डीएनए है और उसके अंतर्गत इस जो डीएनए है इसको हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे। अब ध्यान से देखें, ये डीएनए है, तो इस प्रकार का डीएनए जहाँ पे हमने आप दिखाया है, ये इस प्रकार का डीएनए, देखिए इस प्रकार का डीएनए यहाँ पे हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया दिया। सुटेबल जो होस्ट है जहाँ पे इसकी क्लोन बनेगी, क्लोन बननी चाहिए और क्लोनिंग बनेगा तभी जो है यहाँ से इंसुलिन को प्राप्त हम कर पाएंगे। इसके बाद जो है इसमें लगातार क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है, एम्प्लीफिकेशन होगा और एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस में ये जो इंसुलिन को प्रोड्यूस सिक्रीट करने वाले जो जीन्स हैं, जो डीएनए हैं, वो ज़्यादा संख्या में बनेंगे और ज़्यादा संख्या में जब अमाउंट में बनेंगे तो क्लोन्ड इंसुलिन जीन को, अब हम अगले स्टेप में अगर करें तो अगले स्टेप में आप देखेंगे इस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये बन जाएंगे और ज़्यादा से संख्या में बनेंगे तो इनको क्या करते हैं, इन क्लोन्ड जीन को हम क्या करेंगे, इंसुलिन को प्राप्त कर लेंगे। इंसुलिन को हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो इस आधार पर देखिए ये इंसुलिन जीन है, इंसुलिन जीन है जिनको प्राप्त करके हम जो है ह्यूमलिन नाम का जो इंसुलिन जीन है
उसको डिटेक्ट करते, क्योर करते हैं। और यहाँ पे ए और बी स्ट्रैंड, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप देखें कि आपने इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे आपने देखने का प्रयास किया कि इंसुलिन को प्राप्त करके और इसी के आधार पे हम जो है मेडिसिन्स को बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियाँ जो बनाती हैं और उसका यूज़ करती हैं और यही मेडिसिन को लिया जाता है जो प्रोटेक्ट करता है। दूसरी चीज़ है कि ये तो डायबिटीज़ मेलिटस है, एक रोग होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो इंसिपिडस जो होता है जहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, वो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स के लैक के सिक्रीशन के लैक के कारण होता है और वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जबकि उसका रिटेंशन होना चाहिए, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए आपकी नेफ्रॉन्स में। अगर नहीं हो पाता तो वो डायबिटीज़ इंसिपिडस है और डायबिटीज़ इंसिपिडस के माध्यम से वह एक्सेस अमाउंट में वाटर जो है बाहर जाने लगेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, डिजीज़ है। तो दो प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं। तो सो इन दिस चैप्टर वी आर जस्ट टू डिस्क्राइब टू द एप्लीकेशन ऑफ टू द वन ऑफ द फील्ड ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स थ्रू द जेनेटिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस formed to the human insulin, and what is the process is going on to the form to the clones of to the insulin gene for to the cure and diagnosis of to the diabetes mellitus. So in this processes we are better known that about to the forming to the clone. So the insulin is insulin is the genetical disease which are found in the gene population, so that to the numbers of the people which are, तो इस कैटेगरी में आपने देखा कि फार्मास्यूटिकल्स फील्ड में किस प्रकार से इस प्रोसेस की मदद से हम जो है पूरी प्रक्रिया को दिखाने में जो है सफल रहे हैं और इसके आधार पे ये जीन को प्राप्त करके हमने इसको दिखा दिया। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। अगले चैप्टर में हम फिर से कुछ नई चीज़ों के साथ में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।